Hello students. Our next topic is about synthesis of pyrrole. So today we'll be discussing about different methods of preparation by which we can prepare pyrrole. We know that pyrrole is a 5-membered heterocyclic compound with nitrogen as the heteroatom, and it has 3 pairs of pi or non-bonding electrons, and that's why it's aromatic in nature. Keeping in view this kind of structural property of pyrrole, now we'll be discussing about the methods of preparation. We can use different methods to prepare pyrrole. We'll discuss one by one. Like here you can see, we can prepare it from furan. We can prepare by distillation of succinimide. Pyrrole can also be prepared by cyclization of acetylene in presence of ammonia. Then it can be prepared from ammonium musate. One important method of preparation of pyrrole is this next one, that is called Pal-Knorr synthesis. Why I am emphasizing on this Pal-Knorr synthesis? Because when we will be talking about the next heterocyclic compounds like furan and thiophene, so just like pyrrole, this method of preparation, that is a common method for various heterocyclic compounds, and you can be asked about the mechanism of preparation of any of the heterocyclic compound by Pal-Knorr synthesis. So that's the reason of emphasis of this particular method of preparation. Then we can prepare pyrrole by hand synthesis, and one more method is Knorr-pyrrole synthesis. Just here, I would just again like to emphasize that Pal-Knorr synthesis and Knorr-pyrrole synthesis, they are two different methods. Don't confuse between the two. The starting materials and the end products, they are different because we get derivatives of pyrrole by these methods. Okay. So one by one, now discussing about different methods. First one from furan. Very simple कि one of the heterocyclic compound can be converted into another. So suppose we have prepared furan by some of the method, or we have obtained it from some natural source, then this furan can be converted into pyrrole. We know कि furan, pyrrole, thiophene में जो difference है that is of the heteroatom. ठीक है ना? तो furan को जब हम अमोनिया से treat करेंगे तो it is replaced, oxygen is replaced by the NH group, and we get pyrrole. And this occurs when we heat it in presence of alumina. Okay. So actually how this oxygen get replaced by NH group, we can see by the mechanism, but we will be discussing mechanism of only few methods which I think that you know. So here simply furan is converted into pyrrole when it is treated with ammonia in presence of alumina. Next is from succinimide. Succinimide is itself prepared from succinic acid. Succinic acid का formula तुम सब जानते हो, CH2 और दोनों CH2 पे लगे होते हैं COOH groups, right? तो it's a dicarboxylic acid. And when this succinic acid is treated with ammonia, we get its amide derivative that's called succinimide. So this is succinimide from which we are starting with. And when succinimide is treated with zinc dust and the two are heated, so on heating, what we get is first is the hydroxy derivative of pyrrole, and finally we get pyrrole with emission of zinc oxide. मतलब क्या किया है बेसिकली जिंक ने कि ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप्स हैं, एक्चुअली ये टॉटोमर बन सकता है इसका, क्योंकि 1,3 शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन गिव्स राइज टू टॉटोमर. सो यू कैन सी कि जो एक्चुअली ब्रैकेट में कंपाउंड है दैट इज़ नथिंग बट द टॉटोमर ऑफ द स्टार्टिंग सक्सिनिमाइड, और फिर उसकी जिंक से रिएक्शन से उसने जिंक के 2 एटम्स ने 2 ऑक्सीजन्स को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है OH ग्रुप से, एंड वी गेट पायरो.
सो दैट्स द काइंड ऑफ मैकेनिज्म कि सक्सीनिमाइड, उसका दूसरा टॉटोमर, और फिर टॉटोमर रिएक्ट्स विद जिंक टू फॉर्म पायरोल. Next is bicyclization of acetylene with ammonia. See, I have written 2 molecules of acetylene और अमोनिया को नीचे वाले कॉर्नर पे ले लो, मैंने सेंटर में जैसे दिखाया हुआ है. तो साइक्लाइजेशन होती है अमोनिया का, लोन पेयर अटैक्स ऑन द एसिटिलीन, एसिटिलीन का पाई बॉन्ड अटैक्स ऑन द सेकेंड एसिटिलीन, और एसिटिलीन का पाई बॉन्ड अगेन अटैक्स ऑन नाइट्रोजन, एंड दिस साइक्लाइजेशन प्रोसेस gives rise to the cyclic compound that is pyrrole. तो अमोनिया वाली जो NH है वो टॉप बॉटम नॉट टॉप, वो बॉटम पे आ गया है, और एसिटिलीन का एक एक डबल बॉन्ड साइक्लाइजेशन में यूज़ हो गया और बाकी 2 रह गए. तो वी गेट पायरोल बाय साइक्लाइजेशन ऑफ एसिटिलीन विद अमोनिया. ओके, तो ये हमने 4 मेथड्स पढ़े, फ्यूरेन से, सक्सीनिमाइड से, एसिटिलीन से, सॉरी अभी 3 पढ़े हैं, एंड नेक्स्ट इज़ फ्रॉम अमोनियम म्यूसेट. जस्ट लाइक जैसे हमने कहा सक्सीनिक एसिड और फिर हमने उसका डेरिवेटिव लिया अमोनिया से रिएक्शन करके, इसी तरह वी हैव म्यूसिक एसिड. म्यूसिक एसिड इज़ अगेन ए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, CHOH, 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 CHOH एंड देन COOH, और फिर उसका अमोनियम डेरिवेटिव अगर हम लें तो दैट इज़ अमोनियम म्यूसेट विच वी हैव शोन ओवर हेयर. व्हेन दिस अमोनियम म्यूसेट इज हीटेड विद ग्लिसरॉल वी गेट पायरोल, एंड द साइड प्रोडक्ट्स आर emitted like ammonia, carbon dioxide and water. Okay. Next method is the Paal-Knorr synthesis, and you can see here we have shown the mechanism as well. So again I would emphasize that you should also try practicing about the writing of the mechanism of this synthesis. सबसे पहली बात जो स्टार्टिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं इस केस में that is 1,4-diketone, 1,4-diketo compound, and the common one which we are using over here is acetyl acetone. So what is acetyl acetone? CH3 C double bond O CH2 CH2 COCH3. ठीक है, 2 sort of acetone groups आपस में जुड़े हुए हैं. When this acetyl acetone is treated with ammonia, तो finally we get 2,5-dimethyl pyrrole. हमेशा heterocyclic compounds में जो नंबरिंग स्टार्ट होती है दैट इज़ विद द heteroatom. heteroatom यहाँ पे है नाइट्रोजन, तो NH वाला N इज़ नंबर 1, और फिर हम एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हैं. ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब राइट से लेफ्ट में चलोगे तो नेक्स्ट कार्बन इज़ 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, फिर 3-4 पे नहीं है, और फिर लास्ट में 5 पे फिर मिथाइल है, तो 2,5-dimethyl pyrrole इज़ द डेरिवेटिव विच वी गेट. क्योंकि देखो एसिटाइल एस्टोन की स्ट्रक्चर देखो तो जो साइड में 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं वो हमें फाइनल प्रोडक्ट में भी दिखाई देते हैं. ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म पहले स्टेप में एज यू कैन सी फर्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ अमोनिया ऑन द कार्बोनिल ग्रुप. जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दे शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. in fact addition followed by elimination and ammonia is a nucleophile. तो अमोनिया जो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है दैट इज़ अटैकिंग ऑन द कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को C डबल बॉन्ड O वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रही है. ठीक है, तो C पॉजिटिव पे कौन अटैक कर रहा है? अमोनिया का लोन पे. राइट, तो जो पहला इंटरमीडिएट बना दैट यू कैन सी. नेक्स्ट में क्या होता है कि देयर इज़ लॉस ऑफ वाटर, OH एंड H वाटर लूज करते हैं एंड 1 डबल बॉन्ड इज क्रिएटेड. राइट, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि अगेन देयर इज़ अटैक ऑफ ये जो NH ग्रुप ने अटैक कर दिया था, मतलब NH एक ग्रुप क्रिएट हो गया ना NH2, वो अब फर्दर अटैक कर रहा सेकेंड कार्बोनिल कार्बन पे. सेकेंड कार्बोनिल कार्बन भी उसी तरह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा. पहले अमोनिया ने अटैक किया था, अब
ये जो NH2 लग गया है पहले कार्बन पे वो NH2 अटैक करेगा, ठीक है। तो उसने अटैक किया एंड यू कैन सी कि नाउ वी हैव गॉट कंप्लीट साइक्लिक कंपाउंड। अगले स्टेप में फिर से लॉस ऑफ वाटर, H एंड OH रिमूव होते हैं और फिर से एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है राइट हैंड साइड पे एंड दैट्स द एंड प्रोडक्ट 2,5-dimethyl pyrrole. Mechanism is very simple. It involves nucleophilic attack of ammonia at one carbonyl carbon, then loss of water, creation of double bond. Then again second attack of nucleophile और अब वो nucleophile इस कार्बन पे लगा हुआ है NH2 ग्रुप on the second C double bond O. Again अगले स्टेप में loss of water, creation of double bond and we get the final product. तो nucleophilic attack, loss of water, nucleophilic attack, loss of water, ये चार मतलब ये जो स्टेप हैं 2 बार रिपीट हो रहे हैं एंड वी गेट द फाइनल प्रोडक्ट एंड दैट्स कॉल्ड पाल-नॉर सिंथेसिस. ओके, प्रैक्टिस इट योरसेल्फ. नेक्स्ट वन इज हैंड सिंथेसिस ऑफ पायरोल. दीज आर द नेम रिएक्शन, साइंटिस्ट के नेम पे बनी है. सिर्फ स्टार्टिंग मटेरियल जब बदलते हैं तो नेचुरली साइक्लाइजेशन हो रही है सब में और फिर एंड प्रोडक्ट के जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, पायरोल तो है लेकिन पायरोल का डेरिवेटिव है. जैसे पाल-नॉर सिंथेसिस में हमें 2,5-dimethyl डेरिवेटिव मिला, इस केस में हमें 2,5-dimethyl और फिर 3 पोजीशन पे भी एक COO-C2H5 लगा हुआ है ग्रुप, मतलब एक इथाइलेट आयन लगा हुआ है, इथाइल कार्बोनेट, तो वो भी एक सब्स्टिट्यूएंट एडिशनल है इसमें. अब इसमें क्या यूज़ करते हैं हम, जो रिएक्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ इथाइल एसीटोएसीटेट, CH3 नीचे से ऊपर चल रहे हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, CH2COO-C2H5. इस स्ट्रक्चर को हमने इस तरह से घुमा के लिखा हुआ है क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट में यू कैन सी कि मिथाइल और COO-C2H5 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं लेफ़्ट साइड पे. बीच में हमें मतलब NH ग्रुप चाहिए बॉटम पे, तो हमने अमोनिया भी लिया और दूसरी तरफ क्योंकि रिंग पूरी करनी है तो जो दूसरा हम रिएक्टेंट ले रहे हैं दैट इज़ अल्फ़ा क्लोरोएसीटेट एसीटोन एंड दैट इज़ एसीटोन क्या होता है CH3COCH3. ये क्या है क्लोरोएसीटोन, तो CH3CO CH2Cl. ओके, एंड फाइनल जो प्रोडक्ट है उसमें हमें जो प्रोडक्ट मिला दैट इज़ 2,5-dimethyl एंड 3 पे कार्बोक्सी इथाइल ग्रुप एंड ओवरऑल इट्स पायरोल. अब इसका मैकेनिज़्म ऑफ कोर्स मैंने शो नहीं किया है बट इट विल अगेन बी ऑफ द सेम कि पहले स्टेप में अमोनिया अटैक करेगी इथाइल एसीटोएसीटेट के C डबल बॉन्ड O ग्रुप पे. ओके, लॉस ऑफ वाटर होगा और NH2 ग्रुप लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O की जगह यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड NH2 हो जाएगा और एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड पे. ठीक है, अब सेकंड जो है अटैक वो सेकंड C डबल बॉन्ड O ग्रुप पे होगा और फिर साइक्लाइजेशन फाइनल हो जाएगी जैसा कि पाल-नॉर सिंथेसिस में हुआ था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ हमें एक कॉर्नर पे नीचे की तरफ साइक्लाइजेशन करनी थी, यहाँ पूरी रिंग क्रिएट करनी है, NH ग्रुप भी लाना है, नीचे भी ज्वाइन करना है, ऊपर भी ज्वाइन करना है, बट ऑल इज़ थ्रू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और थ्रू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reactions. Now this is the last one, that is norpyrrole synthesis. Norpyrrole synthesis में जो starting material हम ले रहे हैं, one is ethyl एसीटोएसीटेट जो मैंने राइट साइड पे लिखा हुआ है एंड सेकेंड इज द बीटा एमिनो डेरिवेटिव ऑफ इथाइल एस्टोएसीटेट. मतलब वी स्टार्टेड विद इथाइल एस्टोएसीटेट, उसके 1 मोल को पहले हमने अमोनिया से रिएक्ट करके उसके एमिनो डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर दिया जो लेफ़्ट साइड पे ड्रॉन है. CH3 ऊपर से नीचे आओ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH, राइट साइड पे NH2, लेफ़्ट पे COO-C2H5. और दूसरा मॉलिक्यूल जो हमने लिया उसमें अब नीचे से ऊपर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी इथाइल एस्टोएसीटेट की, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COO-C2H5.
अब NH2 अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। और फिर जो लेफ़्ट साइड पे है H और OH के वाटर के लॉस के बाद डबल बॉन्ड आया, दैट विल अटैक ऑन द CH2 ग्रुप और फाइनल साइक्लाइजेशन पे हमें ये डेरिवेटिव मिल जाएगा। जो लेफ़्ट साइड पे सब्स्टिट्यूएंट थे मिथाइल और COC2H5, और इसी तरह राइट साइड पे सब्स्टिट्यूएंट थे ऊपर COC2H5 नीचे मिथाइल। अब इन स्ट्रक्चर्स को, जो रिएक्टेंट्स हैं इथाइल एस्टोएस्टेट और उसका डेरिवेटिव, इनको हमने रिवर्स क्यों लिखा है? सी, तुम देख सकते हो कि पोजीशन 3 और 4 पे क्या क्या लगे हुए हैं। 3 पे है COOC2H5। हेयर द नंबरिंग हैज़ बीन शॉन इन द रिवर्स ऑर्डर, मतलब क्लॉकवाइज दिखाई हुई है। तो यू कैन सी कि 3 पे मिथाइल है और फिर 4 पे COC2H5। अगर दोनों COC2H5 3 और 4 पे होते तो ये बल्कि ग्रुप एक दूसरे को स्टीरिकली रिपेल करते। तो स्टीरिक हिंड्रेंस कम करने के लिए अपने आप जब रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट्स अरेंज देमसेल्व्स इन सच ए मैनर सो दैट द रिपल्शंस आर मिनिमम एंड अट्रैक्शंस आर मैक्सिमम। और वो तभी पॉसिबल है जब वो रिवर्स ऑर्डर में अरेंज हों और COC2H5 ग्रुप एक दूसरे के एंटी हों और इसी तरह मिथाइल ग्रुप्स भी एक दूसरे के एंटी हों। तो इस तरह से वी कैन प्रिपेयर pyrrole and its derivatives by some simple reaction and by some name reactions. Simple in the sense कि जैसे एसिटिलीन की अमोनिया से साइक्लाइजेशन हुई, या सक्सीनीमाइड है वो ऑलरेडी एक साइक्लिक कंपाउंड है, सिंपली हमने उसको कन्वर्ट करना है पायरोल में, या फ्यूरेन की कन्वर्शन की हमने पायरोल में बाय ट्रीटिंग इट विद अमोनिया। तो फ्यूरेन इज़ ऑलरेडी ए साइक्लिक कंपाउंड, सिर्फ ऑक्सीजन को हमने NH से रिप्लेस करना है। सो दैट वे दे आर सिंपल कि ऑलरेडी साइक्लिक कंपाउंड है और हमने उनमें नाइट्रोजन को इंट्रोड्यूस कैसे किया। फिर उसके बाद हैं 3 नेम रिएक्शन, Pal-Nor synthesis, hand synthesis and Nor-pyrrole synthesis. And I would suggest कि अगर सबका नहीं तो Pal-Nor synthesis का मैकेनिज्म अच्छे से कर लोगे। 1,4-डाइकीटोन यानी एसिटाइल एसीटोन की रिएक्शन विद द एसीटोनाइल एसीटोन, एक्चुअली वो नाम है, उसमें करेक्शन कर लो क्योंकि 2 एसीटोन ग्रुप जुड़े हुए हैं। एसीटोनाइल एसीटोन की रिएक्शन विद अमोनिया और हमें मिल जाता है 2,5-डाइमिथाइल पायरो। So that was about different methods of preparation of